Okay, so let's start the class. Hello, good afternoon, and आज की जो क्लास है इसमें हम एक तरीके से जो क्लास 9th और 10th की पॉलिटी का सिलेबस है उसको एनटीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से मतलब बिकॉज इन एनटीएससी एग्ज़ाम उसी सिलेबस के बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं एंड वी आर हियर टू बेसिकली प्रिपेयर एंड टारगेट दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम. तो वी विल बी मतलब referring to those books of class 9th and 10th, but we will be referring to them with this objective in our mind that we have to eventually perform well, and our preparation should be in of such a standard or in such a manner we have to prepare, or we have to look at that syllabus or that textbook so that we are able to attempt more and more question in that particular exam correctly. Fine. अब अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, स्पेशली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, यू मस्ट हैव फाउंड एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं रादर, एंड विच आर दोज फैक्ट्स एज सच आर नॉट प्रेजेंट इन योर बुक. ठीक है, इसलिए अभी मैं क्या करूँगा कि इन दिस क्लास I will quickly go through, like I will quickly make you revise the conceptual part which are there in class 9th book. ठीक है, दो chapters basically आज मैं cover करने की कोशिश करूँगा. इसके दो शुरू के जो मुझे लगता है conceptually सबसे strong मतलब base बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं. ठीक है, so there are 5 chapter in this class 9th उसमें, एंड इसमें ये जो दो चैप्टर हैं इनको टारगेट करते हुए जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में वो मैं डिस्कस करूंगा, एंड क्विकली आपको 4-5 स्लाइड में पर चैप्टर इन 4-5 स्लाइड्स आई विल बी एबल टू मेक यू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच आर देयर, द बेसिक्स लाइक इफ डेमोक्रेसी, लाइक देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड why do we need it, when can we say that yes it is a democratic setup or it is not a democratic setup, or what type of other setups which are available alternative of democracy. ठीक है, so वो सारी चीज़ें theoretical conceptual part briefly, and then largely we will focus on the MCQ because eventually like we are targeting an exam and we have to mold our preparation, our understanding in such a manner that we should be able to apply all those concepts, and so this class will be mix of both the revision plus practice session. ठीक है, so we'll be practicing certain MCQs. I am told that currently like there are 16 students are visible, and I am told that they will be asking question. So if like any of you are live and currently in like live on this portal, so just respond something, say hi or something, so that I get assured that yes you are there, and we should start with the class. And the portal is functioning basically. I have to test that also. ऐसा नहीं हो कि आप लोग वहाँ से अपने कुछ रिस्पॉन्सेज भेज रहे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू रिसीव एंड आई एम नॉट एबल टू. Harshit Goyal, Shaurya Gupta, Aditya Saxena, all these names are visible. So are you guys there? Okay, as of till now I haven't not received any query or any response, any messages. So okay, I'm assuming that you are there, and somehow there is a delay in my saying and in your responding. Maybe there is a delay in the broadcasting also. So ठीक है, let's start with the class. So first, as I said that initially I will be looking at briefly the conceptual aspect of. So इसमें the first chapter is what is democracy and why democracy, like why do we need it and why not the other alternatives which are available. Okay, तो इसमें yes, so
what is democracy, what are its features, objective and ideas of democracy. Yeah, we'll be looking at all those things. And there is this fact which is given in your book. All the content of these revision slides are directly taken from that particular book only. So things will be familiar. The idea was कि आपको चीज़ें familiar भी लगें और आपके लिए आसान भी हो. जिस text में, जिस language में आपने चीज़ों को सीखा है, पढ़ा है, अगर वही रिवाइज करते हुए भी आपके सामने होती है तो आप थोड़ा जल्दी उसको पिक करते हो, जल्दी उस चीज़ों को आप आपके दिमाग से वो समझ में आती हैं. ठीक है. सो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज. सो दिस इज अ फैक्ट. तो अगर जैसे आपको एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है, लाइक दे से दैट दे आर सर्टेन proposition or there are certain claims about democracy and they write few, और वहाँ पे अगर ऐसा लिख देते हैं कि democracy is the most prevalent form of government in world today but it is not expanding or it is contracting or it is its reach is declining. ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर बोलें तो आपको समझ में आना चाहिए कि नई बुक में है तो अपने को बताया था कि भाई expand कर रहा है, more and more countries are coming into this realm of democracy and more countries are becoming democratic and that already existing democracies are becoming functional democracy. They are just not in the name of, it's not just the case that in their name or in their document or in their legal document they have mentioned that they are democracy but in reality they are not following the features of democracy. ठीक है, जैसे for example China, they claim that we are a planned democracy or centralized democracy or democratic dictatorship. ठीक है, so these are the type with which they associate but when it comes to like the setup, the government setup that we see, वहाँ पर जो है उसमें वो डेमोक्रेसी की जो अंडरस्टैंडिंग है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई डेमोक्रेसी में तो ये होना चाहिए, वो फीचर्स वहाँ अवेलेबल नहीं है. हम अपनी क्लास में भी क्विकली ये भी देखेंगे कि वो फीचर्स क्या होते हैं. ठीक है. तो democracy, the origin is in the Greek language of this word, demos and rule. So democracy is the rule by the people. There is this Abraham Lincoln quote, basically in one quote he explained the idea of democracy, that democracy is a government of the people, by the people and for the people. ठीक है. So basically it is people centric government setup. I hope that all the like why democracy, this idea was required at certain point of time and how this came along, तो वो सारी history में मैं नहीं जा रहा हूँ and I am sure कि वो आपने जब ये book पढ़ी होगी और इस जब भी ये chapter आपकी classes में discuss हुए होंगे तो उस समय सारी चीज़ों को उन्होंने बताया होगा. तो without going into that much history and the like the conception of India, what I'll be simply make you revise. I'll be just showing you certain things which I feel that from exam point of view should be in your current memory, working memory and the question might be, जैसे मैंने पिछले उसमें दिखाया कि भाई इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो ये है एंड सिंपल डेफिनेशन. ये जो एक लाइक आइडिया, अल्टरनेटिव आइडिया वाज गिवन कि डेमोक्रेसी स्टार्ट यहाँ से हुई थी बट आज की डेट में क्या हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती है कई सारी जगहों पर. ठीक है, कि इट इज़ नॉट basically of the people and it's not basically people centric, rather it is it is not for the people, rather it is making people as its fuel. It is basically in a way using people rather than being used for the people. ठीक है, तो वो भी एक हद तक ये बात सही है but eventually we are again looking it from the theoretical perspective. That's why this is the definition. And simple definition is democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. ठीक है, so now this is one of the very essential feature and it should be there, it must be there if you want to say and if a country want to claim that they are a democracy, this is a feature that must be there. ठीक है, rulers. ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं सच की हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ द स्टेट को अगर इलेक्टेड करने का बोल देंगे देन इट विल बी रिपब्लिक. उसका एक अपना अलग नाम होता है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक. ठीक है, कि जहां पर हेड ऑफ द स्टेट को अगर लोग इलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रिपब्लिक. लेकिन डेमोक्रेसी जहां पर कि द पीपल हु एक्सरसाइज द अल्टीमेट पावर इन डे टू डे लाइफ. ठीक है, द एग्जीक्यूटिव्स. आपने पढ़ा होगा ना कि जो
डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, वहाँ गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, दोज आर नोन एज, यस, दी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऑर्गन्स जैसे ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए दे आर सर्टेन वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। अब विदाउट देम द होल body cannot function in an integrated manner, which are very essential for it to function. Similarly, for a government setup to function in a democratic environment, there are certain organs like legislative body, like executive, like legislative and judiciary. ठीक है, legislature, executives and judiciary. So these two are elected by the people and not the judiciary. ठीक है, so this is a, इनका तीनों का अपना अलग अलग काम होता है. एग्जीक्यूटिव्स आर देयर टू एग्जीक्यूट द रूल्स एंड लॉज. लेजिस्लेचर और member of legislature assemblies are there to frame the laws, and judiciary is there to basically judge ki whether those laws are being applied in with the spirit or not, those laws or rules are being applied in the manner they should be or they are being misused. So वो जो जजमेंट वाला काम है वो अपनी जुडिशरी का है. बाकी ये लोग कानून बनाते हैं और ये उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो ये तो भाई आई डोंट नो लाइक इफ देयर इज अ इशू विद पोर्टल और व्हाट, but eventually we have to do the MCQs and for that you have to participate in the exercise. ठीक है, चलिए. So the next thing is कि elected people should have the real power. Elected people, ठीक है, member of parliament, member of legislative assemblies, MPs and MLA as you know them, not just in the letter but also in the spirit. तो ये कुछ ऐसे countries है जहाँ पर real power नहीं है, just in letter. तो एक फीचर तो वो था जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया. नाउ दिस इज अ वेरी असेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है एमसीक्यू में कि आपको उन्होंने 3-4 फीचर्स के बारे में बताया और बोला कि इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी का फीचर है और कौन सा नहीं है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ वेरी क्लियर कट लाइक क्लैरिटी अबाउट कि डेमोक्रेसी के लिए क्या चीज होनी चाहिए. ठीक है, इलेक्टेड पीपल शुड हैव द रियल पावर. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. जब हमने शुरू में बोला था कि इलेक्टेड पीपल शुड हैव द रियल पावर टू गवर्न, टू मेक रूल्स, टू इंप्लीमेंट दोज रूल्स. ठीक है, सो दीज आर द इलेक्टेड पीपल. नाउ हाउ दोज इलेक्टेड पीपल शुड कम इनटू बीइंग. ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इज एन मैकेनिज्म दैट शुड बी डिप्लॉयड एंड दैट इज वेरी एसेंशियल. ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे किसी रिलीजन के आधार पे आप लोगों को कि ओनली पीपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलीजन कैन इलेक्ट पीपल और कैन बी इलेक्टेड. ठीक है, तो ये नहीं हो, मतलब ये तो फिर आपने लिमिट कर दिया. फिर वहां पर फ्री एंड फेयरनेस नहीं है. वहां पर आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप, अगर वो कंट्री मल्टी रिलीजियस कंट्री है तो ठीक है, अगर वहां पर सभी लोग एक ही रिलीजन में बिलीव करते हैं देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But practically and realistically, if in a country there are multiple groups and those groups can be on the basis of religion, the caste, the gender, ठीक है, the language, culture, ethnicity, on variety of basis those groups can exist in a country. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आप ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है और बाकी लोगों को वो एडवांटेज अवेलेबल नहीं है. तो फ्री and fair electoral competition. Now this is very essential feature of democracy. ठीक है, then this one person one vote one value, जो मैंने इस पे पहले बोला था ना कि फ्री एंड फेयर, तो फेयरनेस को इन्होंने यहां पर ऐसे डिफाइन किया है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. ठीक है, एंड देयर इज अनदर टर्म, टेक्निकल टर्म फॉर इट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. ठीक है, सो आप ये बोलो या वो बोलो, एक ही बात है. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब कि जो भी एडल्ट हैं आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में, ऑल ऑफ दोज एडल्ट शुड हैव अ राइट टू वोट. ठीक है,
सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. इसको हम क्या बोलेंगे? इफ इन अ सेटअप there is this one person, one vote, one value, we will call it a political equality. I hope आपको समझ में आ रहा होगा. यहां पर कुछ एग्जाम्पल है जहां पर कि पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है. ठीक है, सो these are few examples. That's it. Next thing is about the features of democracy is the rule of law, respect for rights. ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का वैसे तो ये भी पॉलिटिकल साइंस में एक अपना इसके भी फीचर्स होते हैं. देयर इज अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव गिवन देयर ओन डेफिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल ऑफ थॉट दे बिलोंग टू. बट रूल ऑफ लॉ को आप आपके स्तर पे मैं बोलूँगा कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कानून बनाया गया है तो वो कानून का ढंग से पालन हो. और अब जैसे क्या होता है, कानून तो लगातार हमेशा बनाए जाते रहते हैं. हर साल एक कई सारे मतलब जब भी हमारी पार्लियामेंट मिलती है साल में 3 बार 3 सेशन होते हैं. ठीक है, अच्छा मैंने जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख रहा था तो उसमें देखा कि कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. कॉन्सेप्चुअल का स्तर थोड़ा सा कम रहता है तो फैक्चुअल पूछ लेते हैं. जैसे ऐसा ही पूछ सकते हैं कि कितनी बार अपनी पार्लियामेंट मिलती है. ठीक है, पार्लियामेंट तो बेसिकली 3 सेशन होते हैं. बजट सेशन, ठीक है, जो बजट आता है आपका फरवरी में, फरवरी मार्च वाला जो पूरा मीटिंग होती है, सेशंस होते हैं, उनको बजट सेशन बोलते हैं. देन देयर विल बी मानसून सेशन, जो बारिश के वक्त, जो बारिश का सीजन होता है हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में, वो अगस्त के समय होता है. ठीक है, तो अगस्त में जो मिलते हैं उसको मानसून सेशन बोल देते हैं. और फिर आपका ये विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र बोलते हैं हिंदी में जिसको. ठीक है, अभी पिछले ही महीने जो खत्म हुआ था तो दिसंबर के आसपास वो मिला है, वो होता है. ठीक है, तो अब ये जैसे 3 सेशन में अपनी पार्लियामेंट मिल रही है तो यहाँ पर कई सारे लॉज रूल्स बनाते हैं. तो वो रूल ऑफ लॉ का ये भी एक पार्ट है कि वो जो नए लॉज बनाए जाएं वो आपका एक कोर लीगल सिस्टम होगा ना. जैसे एक फिलॉसफी जो बताएगा कि हमारे देश में किस तरीके के कानून बनाए जाने चाहिए. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन कि विच लॉ or which set of rules or which document I will say basically basically tell us about कि what kind of laws should be framed and what should be the nature and characteristics of the law that should be enact or that should be made in our country. So if I ask you like that particular document, what do we call that document? Now tell me. No response again. So, okay, yes, now I'm getting. Okay, so I have to click each and every student's name, then only I can see their responses. Okay, I didn't know this feature. Okay, so Aditya Saxena is asking, sir, can you please repeat the session's name? The first session is budget session, then there is monsoon session, and then there is winter session. ठीक है, budget, monsoon, winter. बजट तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि भाई पार्लियामेंट का जो सब बहुत सारे काम होते हैं ना, कानून बनाना, तो जो पार्लियामेंट के अपने बहुत सारे कामों में से सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि जो जैसे हमारे देश को चलाने के लिए आप अपने जैसे एक एग्जाम्पल लेके देख सोच सकते हैं कि आपके घर में क्या, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपके घर में घर को चलाने के लिए क्या सबसे अहम पार्ट होता है. ठीक है, रोज के अपने डेली के जो काम है वो तो है ही कि खाना बनाना, सफाई करना और घर को एक मैनेज करना, घर को और सुंदर बनाना, वो सारी चीज़ें तो हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वेरी एसेंशियल एक्सरसाइज दैट नीड्स टू बी डन एंड दैट इज द बजटिंग. कि घर में कितना पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किसको कितनी पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, किसकी कितने शौक पर खर्च करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्या करना है. तो दैट बजटिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर अ होम टू रन, राइट. अदरवाइज कि मतलब
आमदनी और आपके जो खर्चे हैं उसमें एक तालमेल होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से सरकार को भी वो तालमेल बैठाना पड़ता है, एंड दैट्स वाई दे द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, जो मैंने बताया था 3 ऑर्गन में से जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे प्रेजेंट कि वो क्या खर्चे करेंगे, ठीक है, और उनका बेसिकली क्या आइडिया है, वो कौन सी किस तरीके के खर्चे करने वाले हैं, शिक्षा पे कितना खर्च करेंगे, ठीक है, हेल्थ पे कितना खर्च करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। और उसके बाद जो हमारे लेजिस्लेचर पीपल होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर मेंबर, दे बेसिकली गिव वोट ऑन इट, लाइक दे इवेंचुअली वोट ऑन इट, वोट ऑन दोज डिमांड्स, वोट ऑन दोज प्रपोजल्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम कहाँ थे, हाँ, एक तो उन्होंने पूछा कि सो व्हाट आर द एम ऑफ विंटर एंड मानसून सेशंस, ठीक है। So as such, they are nowhere they have defined the aims as such. What they have said कि भाई डेमोक्रेसी में लोगों का, भाई डेमोक्रेसी में जो मैंने शुरू में बोला था कि रूल ऑफ द रूलर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक इस तरीके से संविधान में अपने बोला गया है कि देयर शुड नॉट बी गैप ऑफ मोर देन 180 डेज, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए सत्रों 2 सेशंस के बीच में। तो ये क्यों बोला गया, जिससे कि ये इंश्योर करने के लिए कि भाई संसद चले और संसद में लोग आए और संसद में वो सारी बातचीत और संसद को बेसिकली काम करने का मौका मिले, ठीक है। तो इसीलिए अब वो जो कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाएगा 3 बार बेसिकली मिलना होता है। तो दिस इज दे आर नो एज सच नॉट, कोई ऐसे डिफाइंड नहीं है कि इस सेशन में ये होगा या उस सेशन में वो होगा, ऐसे कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एज सच डिफाइंड नहीं है, बट दिस इज मोर लाइक अ कन्वेंशन, एक परंपरा के तौर पर ये चल रही है कि हाँ भाई 3 सेशन होते हैं। बिल्कुल कोई बोल सकता है कि सर समर सेशन क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट सम हाउ दिस इज हाउ। अब इसके पीछे मुझे लगता है कि क्या रीजन रहा होगा, अगेन वो ऐसा जितना अपना एग्जाम का पार्ट नहीं है, बट मुझे लगता है कि बजट तो समझ में आता ही है कि बजट क्यों सबसे क्योंकि बजट इज वन ऑफ द टास्क, मेन थिंग दैट अ पार्लियामेंट नीड्स टू डू। Apart from this, rain is a very essential aspect of this Indian subcontinent, ठीक है, because our economy depends on it, depends on rain. So maybe that's why they budget session तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो इस तरीके का है कि वो मार्च वो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसलिए मे बी फरवरी से वो अपना बजट लेके आते हैं कि भाई अप्रैल से जो एक नया साल फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है तो उसके बारे में बात करें। फिर मानसून इज समथिंग कि मतलब दीज आर मोर लाइक कि टू सिग्निफाई कि बिकॉज रेन इज इवेंचुअली इज द रीजन विच डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ आवर इकोनॉमी, नॉट दैट मच नाउ बट conventionally if you go back to 50-60 years back, so for previous centuries rain played a very essential role in the economy because agriculture led economy थी हमारी, ठीक है। तो maybe to give that recognition, nobody like nowhere as such there is a formal recognition of कि why and there is a monsoon session, ठीक है। तो यही है, चलिए। So basically I have to click on each and every student's name, then only I will be able to see their responses. I thought that all of the responses will be visible one by one. खैर, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं वो किस तरीके के कानून होने चाहिए और उनको भी कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। अगर ऐसा है तो कौन सा अल्टीमेट सुपर लॉ है हमारे देश में, या कौन सा वो सुपर डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि किस तरीके के लॉज हमारे देश में बन सकते हैं और उनको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्हाट इज, इफ देयर इज एनी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लॉ और द डॉक्यूमेंट और व्हाटएवर। कॉन्स्टिट्यूशन, या आदित्य सेड कॉन्स्टिट्यूशन, सो या दैट्स ए करेक्ट आंसर कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी बातें लिखी हुई हैं, उसमें पूरा बताया गया है कि कौन किस मुद्दे पर कानून बना सकता है। जैसे हमारे यहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, फेडरल
जिसमें कि आपने जो यूनियन है, स्टेट आपने पढ़ी होंगी, शेड्यूल्स, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने 12 शेड्यूल के बारे में पढ़ा होगा, आई होप. In one of the there is a one question about those schedules and there I have given like all the list of 12 schedule. ठीक है, तो खैर यहाँ पर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चलो ठीक है, वहीं पर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि शेड्यूल के बारे में एक साथ. ठीक है, तो अभी ये समझ में आया, रूल ऑफ लॉ आपको, रेस्पेक्ट फॉर राइट समझ में आया. सो दिस इज अगेन अ वेरी एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. देन पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक. ठीक है, तो पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक. ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि जब भी हम बोलते हैं डेमोक्रेसी तो उसमें हमेशा ही बोला जाता है कि जो मेजोरिटी बोले वही है. मेजोरिटी रूल बेसिकली इज द डेमोक्रेसी, है ना. कोई बताएगा कि ये चीज किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि हाउ दिस पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक? लेट मी जस्ट गिव मी ए मिनट एंड आई विल रिज्यूम. तब तक आप इसका आंसर. हेलो, ओके, सो लेट्स रिज्यूम द क्लास. तो पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक. हाउ? कैन वन एक्सप्लेन? एनीवन एक्सप्लेन? लेट मी सी द रिस्पॉन्सेस. नो रिस्पॉन्स. भूमि इज नॉट. सिद्धांत, ठीक है. There is no response from anyone, मतलब regarding this. Fine. So let me explain. See, एक तो हम टर्म यूज करते हैं मेजॉरिटी रूल्स. ठीक है, अब ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से मैं कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रहा हूँ. मोस्ट ये जितना इसका टेक्स्ट है आपकी स्लाइड का, दैट इज गिवन इन योर बुक. सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू नीड टू नो ऑल दिस इन डिटेल. ठीक है, तो देखिए, एक तो होता है मेजॉरिटी रूल और एक टर्म आपने सुना होगा मेजॉरिटेरियनिज्म. ठीक है, इज्म, मेजॉरिटेरियन, इसको मेजॉरिटेरियन रूल भी बोलते हैं या मेजॉरिटेरियनिज्म भी बोलते हैं. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मेजॉरिटी रूल्स एंड मेजॉरिटेरियन रूल. ठीक, तो मेजॉरिटी रूल तो सिंपल सा ही मतलब होता है कि आपने जो फीचर अभी हमने देखे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, देयर इज ए फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन गोइंग ऑन, एवरीवन इज हैविंग अ सिमिलर वन वोट वन वैल्यू. ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, that is given to everyone in who is your citizen, and once that is given and there is electoral exercise, then majority जिसको होती है first past the post, that's the first past the post. Now, ठीक है, so that is a system, FPTP भी बोलते हैं उसको short में. So who अकॉर्डिंग टू दिस रूल फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब कि वही है कि जो मेजोरिटी को, जिसने जो सबसे पहले मेजोरिटी, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिल रहे हैं वो आपका इलेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए दैट्स वाई एक ये भी बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया आर माइनॉरिटी गवर्नमेंट, बिकॉज इन ऑर्डर टू make the government all you need 38 to 40, around approximate 40% of the votes if you have, then because there are so many parties with 40% of the vote, you can emerge as a majority party. ठीक है, you can like win that particular constituency. You can if you have all throughout the country, if you have 40% vote, then most likely you will be coming as a group, as a party जिसके पास की सबसे ज़्यादा number of seats हैं. ठीक है, और इवन अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी देखो तो वहाँ पे भी जीतने के लिए आपको 40% अगर आपको वोट मिल गए तो इसका मतलब है कि बाकी किसी को 30 मिलेंगे, किसी को 20 मिलेंगे, किसी को 10 मिलेंगे, तो 40% इज ए मतलब सिग्निफिकेंट नंबर. ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि इंडिया में माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती हैं, मतलब माइनॉरिटी मेजॉरिटी है कि द गवर्नमेंट्स विच आर देयर इवन दो दे हैव कम अक्रॉस पासिंग दिस FPTP एंड
they have that number, but eventually number of people who have voted for them are in minority. ठीक, तो एक तो ये चीज है. खैर मैं ये समझा रहा था मेजोरिटी रूल्स और मेजोरिटेरियनिज्म. इसमें होता है कि आपने जहां पर ये देखा कि सबसे ज्यादा वोट जिसको मिल रहे हैं वो तो मेजोरिटी, वो उसको तो हम बोल देते हैं मेजोरिटी रूल, जहां पर कि नंबर्स देखे जाते हैं कि भाई जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है वो आपका विनिंग कैंडिडेट है, विनर है. ठीक, बट मेजोरिटेरियनिज्म ये होता है, या मेजोरिटेरियन रूल बोला जाता है कि एक कोई कम्युनिटी, एक ग्रुप, ठीक है, अब वो ग्रुप कास्ट के आधार पर हो सकता है, वो ग्रुप रिलीजन के आधार पर हो सकता है. तो अगर किसी ग्रुप को, और वो ग्रुप मेजोरिटी में है थ्रू आउट दी कंट्री, एंड उस ग्रुप को पास ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जिससे कि वो जो रूलर्स हैं उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, या उनको उनके ऊपर कुछ इफेक्ट, अपना प्रभाव, दबाव डाल सकते हैं, तो उसको बोला जाता है मेजोरिटेरियन रूल. ठीक है, कि because of this group has certain advantage, certain entitlement, certain special rights you can say जो इनके पास है, और इसीलिए ये जो सरकारें हैं या जो भी लोग इस देश में शासन करने वाले हैं उनके ऊपर इनका एक प्रभाव रहता है, तो उसको बोल सकते हैं मेजोरिटेरियनिज्म या मेजोरिटेरियन रूल. ठीक है, तो इसीलिए पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो सकती है जो बहुत सारे लोग पसंद करते हो, बट जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है. एक और एग्जांपल जैसे कि अगेन फ्रॉम द हिस्ट्री, जैसे हिटलर, व्हेन ही केम इनटू द पावर he was very famous in his country, but as we know that he was not a very democratic ruler. He had that an idea कि there is a particular group of people जिनको मुझे प्रमोट करना है, and there is a group of people जिनको मुझे suppress करना है. Again, the group of people whom he wanted to promote, they were in majority, but he gave them a special privilege कि just because you belong to that group you will get all the benefits, we will get all the special advantages. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को जस्ट बिकॉज वो उस ग्रुप का हिस्सा है उनको एक स्पेशल एडवांटेज मिल रहा है जो कि बाकी लोगों को नहीं है. तो उसको हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म या मेजोरिटेरियन रूल. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कोई डाउट? According to me, popular governments can misuse their powers. They are less accountable to the people, and also opposition are afraid to resist them. Hence, the government is very unstable. ठीक है. See, सिद्धांत, when we say government is stable or unstable, तो वो हम use करते हैं when a government is not likely to survive. वहाँ पर stable and unstable का use करते हैं. Again in political science के terms में. ठीक है. Sure, a popular government such as when the Bolshevik party began to appear in the starting of the Soviet Union. Definitely, right. You're right, sorry. Aditya, emergency in 75 by Indira Gandhi or Kim Jong-un. See, emergency was not very much appreciated by the people. ठीक है, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, बट हाँ, emergency was something because Indira Gandhi, when she became a prime minister, and after 1972 war, she became very popular. And yes, you can say that yes, popular government can be undemocratic. See, in the circumstances when she deployed that emergency उससे पहले भी deploy की गई थी. 1972 में जब हमारा war हुआ था, even that time emergency was there. ठीक है, बट 75 में जो उन्होंने जिस बेसिस पे इन्होंने इमरजेंसी को मतलब इम्प्लीमेंट किया, दैट वाज क्वाइट अनडेमोक्रेटिक. ठीक है, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. ये जो आइडिया है ना, इस आइडिया का भी एक नाम है, मैं आपको बता देता हूं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म.
ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि जहां पर चीजों को एक देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फॉर टू पर्पजेस. वन, टू डिफाइन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द रूलर्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो पर्पजेस हैं. वन इज टू डिफाइन द रूल, one is to define the powers of the ruler and another is to define the rights of the subjects, citizens or people who to be ruled. ठीक है, तो ये होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो मेन दो पर्पज होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट चलाई जाती हैं या सरकारें चलाई जाती हैं, शासन व्यवस्था होती है किसी देश में, तो हम उसको बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और हिंदी में इसको बोल देते हैं संविधानवाद. ठीक है, चलिए अभी मेरे ख्याल से सब आपको क्लियर होगा इसमें. इफ यू हैव एनी डाउट्स regarding what we have discussed so far, so I'll just quickly summarize the first chapter with this the definition of democracy, and that is the democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decisions. ठीक है, election offer a choice and a fair opportunity to the people to change the current rulers. मतलब जहाँ पर fair chance है कि the ruling dispensation or the ruling party may lose the upcoming elections. ठीक है, अगर जहाँ पर ये fair possibility है, so that is a kind of democracy and that basically in a way indicate that the democracy is surviving. Then the choice and the opportunity is available to all the people on equal basis. Choice and opportunity of what? Choice to choose whom to vote and whom not to vote, and opportunity is basically for anyone to participate in this electoral competition. ठीक है, participate in electoral competition. अभी जैसे इतनी सारी स्टेट्स में, पंजाब में, यूपी में अभी इलेक्शन की घोषणा की है ना इलेक्शन कमिश्नर ने लास्ट वीक. सो नाउ एनीवन हु वांट टू रन फॉर अ पर्टिकुलर who want to run as a MLA in a particular constituency, so they can do so. Of course, there are certain eligibility criteria that one needs to follow in order to run as a candidate in a particular election. But those those eligibility criteria should be very objective and should not be giving any advantage to any community on the basis of gender, religion, caste, etc. ठीक है. The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution. The exercise of this choice, ठीक है, lead to a government which is limited by rules of the constitution and citizens right. ठीक है, तो एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर आपने डिफाइन कर दिया, अगर किसी की पावर्स को अगर आप डिफाइन कर दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप एक तरीके से उसकी पावर को लिमिट भी कर दे रहे हो. ठीक है, एंड दैट्स हाउ व्हेन the things are defined in constitution, in a way they put a restriction on the government. But when things are not defined, when things are vague, then there is a scope of misinterpretation, there is a scope of misutilization. ठीक है, there is a scope of exploitation. ठीक है, क्योंकि जहां पर चीजें डिफाइंड नहीं होती हैं, मिसयूज होने का चांसेस वहीं सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, एंड दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर्स, दोज रूल्स. बेसिकली रूल का मतलब ये कि उनकी क्या रूल्स में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सिटीजन्स राइट, कि सिटीजन के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं विच कैन नॉट बी वायलेटेड एट एनी कॉस्ट. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं MCQs पे. इज देयर एनी अदर response, any query?
ठीक है, fine. So let's start with this. So for the first MCQ is here. This is taken by, again, from your book only. Here is some information about 4 countries. ठीक है, 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic, undemocratic and not sure against each of these. ठीक है, ये आपकी NCERT से ही pick है question. So now you tell me, because now I'm not supposed to answer all these questions. You are supposed to tell me. So what should I write for country A, country B, country C, country D, depending upon the feature which is written in front of them. So what should I write for a country A? Just tell me. No response. The country A says the people who do not accept the country's official religion do not have a right to vote. So on the basis of all that we have discussed, how will you rate or how will you classify this particular country? Like, is this a democracy or a, you are sure that this is not a democracy, or there is this unsurety and there is a lack of reasonable data to reach to a conclusion, and that's why you will go with not sure. Nobody is giving any answer. How come? Okay, Kabir Upneza. Yes, Kabir says, okay, now, yeah, responses. Fine. Country A is undemocratic, fine. Country B not sure, country C democratic. Country B is perhaps not sure and country C is democratic, fine. Priyanshi is saying country A is democratic. ठीक है. Sorry, Priyanshi says country A is undemocratic, not democratic. तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि if there are certain facilities which are reserved for a particular group, ठीक है, and that to this kind of right to vote, if you limit that right to vote for a particular group who belong to a particular religion on the basis of a religion, ठीक है, so then that is for sure. If you do not give right to vote, if there is not a basically this is violating what? This is violating that feature of democracy, universal adult suffrage, कि जो भी मतलब objectively, universally everyone who is adult should have a right to vote. तो वो जो शुरू में नहीं था 1 person 1 vote 1 value, ये उसका violation कर रहा है. Because you do not give right to vote to a person who does not follow official religion. ठीक है. देन अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जो सेकुलरिज्म, अगेन इन जो पॉपुलर नोशन जो होता है सेकुलरिज्म का, उसमें ये बोलते हैं कि स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और देयर शुड बी सेग्रीगेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च और स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है. तो ऐसा हो सकता है, मतलब बीइंग सेकुलर इज नॉट अ मतलब क्राइटेरिया फॉर अ कंट्री टू बी डेमोक्रेसी. ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में मतलब अपने ध्यान में रखिएगा कि सेकुलर होना डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल नहीं है, ठीक है. क्योंकि जैसे हमने ये जो बात बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि दैट कंट्री इज नॉट सेकुलर बट दे डू प्रोवाइड राइट टू वोट टू एवरीवन. सो लाइक ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अगर आप प्रियम्बल देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आयरलैंड, इफ यू गो एंड सी लुक एट देयर प्रियम्बल, in the preamble itself they dedicate their constitution to Jesus Christ. They mention about Holy Trinity, they mention about Father, Son and the Holy Spirit. They recognize all those things. So by the look at it, you can, as you can understand ki Christianity has a very major influence on the laws of that country in Ireland, ठीक है.
बट दैट डज नॉट मीन कि आयरलैंड इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इवन दो इट्स नॉट दैट सेकुलर बट इट इज अ डेमोक्रेसी, राइट? तो ये भी दिमाग में रखिएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं, कंट्री बी। द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 years. Now the same party has been winning election for the last 20 years. देखने में लग रहा है कि हो सकता है ये अनडेमोक्रेटिक हो, बिकॉज हाउ कम देयर इज नो वन एल्स इज कमिंग, बट देयर कैन बी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. जस्ट लुक एट अ कंडीशन in India when we got freedom in 1947 and first election happened in 1950-51, and then non-Congress government at the center for the first time that happened in 1978. 77 में जब इमरजेंसी हटी और उसके बाद जो इलेक्शन हुए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब जनता गवर्नमेंट केम एंड दैट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट. तो फॉर ऑलमोस्ट 2.5 decade इट वाज वन पार्टी, सेम पार्टी, इट वाज विनिंग इलेक्शन इन द सेंटर. ठीक है ना? तो ऐसा इसलिए यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट. यू कैन नॉट से कि दिस इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. यू कैन नॉट से कि ऑन दिस बेसिस वी कैन कंक्लूड कि दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी. ठीक है? दैट्स व्हाई यू विल से वी आर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. Then the ruling party has lost in the last 3 elections. So in the previous 3 elections, every ruling dispensation has lost the election. So that is certainly can happen only in a democracy. That cannot happen in an undemocratic setup, जहाँ पर कि ruling party is losing out the election. ठीक है? Because ruling party will always be having an advantage to manipulate, to misutilize the apparatus, state apparatus, है ना? स्टेट एपरेटर्स मतलब जो भी लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल एक्सरसाइज में, कहीं ना कहीं वो सब गवर्नमेंट के ही मेंबर होते हैं, राइट? टीचर्स होंगे, पुलिस होगी, फोर्स होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, इवेंचुअली वही तो काम करते हैं उस इलेक्टोरल एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने में. ठीक है? तो रूलिंग पार्टी इज डेफिनेटली मतलब यूजुअली हैव एन एडवांटेज एटलीस्ट इन थ्योरी. प्रैक्टिकली वो अप्लाई इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज देयर इज अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. ठीक है? एंड दैट्स उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जैसे आपने देखा भी होगा कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर एसपी को या डीएम को ट्रांसफर कर देते हैं, बिकॉज द मोमेंट इन्होंने ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्शन होने हैं, उसके बाद वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होता है. लाइक दे कैन ट्रांसफर एनीवन, दे कैन रिमूव एनीवन फ्रॉम अ सर्टेन पोस्ट इफ दे फील कि दैट पर्सन इज politically biased or that person is not likely to become a hindrance in the like impartial electoral competition. ठीक है? और ऐसा होता है कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में if all the मतलब नॉन रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी सेज कि भाई ये जो डीएम है या ये जो एसपी है ये मतलब बायस्ड है, अगर मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स ऐसा बोलते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनको हटा देते हैं. ठीक है? उनको ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी करते हैं. तो रूलिंग पार्टी का जो एडवांटेज है उसको कम करने की काम करता है इलेक्शन कमीशन. ठीक है? चलिए नेक्स्ट है कंट्री डी. देयर इज ए नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. तो अब जहां पर ये इलेक्शन कमीशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां तो फिर रूलिंग पार्टी अनड्यू एडवांटेज मिलेगा ना उसको. तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है दैट मीन्स कि वेरी लाइकली अनडेमोक्रेटिक. देन कौन होगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन को एंश्योर करेगा? है ना? अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ही नहीं है तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हो ही नहीं पाएगा वहां पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग डेमोक्रेसी इन इंडिया बेस्ट रिफ्लेक्ट दिस? ठीक है? तो एक स्टेटमेंट है और उसके आधार पे आपको बताना है. द ऑप्शंस आर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पोजेसिंग अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा. अगेन ये एक फीचर है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी होती है लोकसभा में उसका लीडर होता है. एन असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. ठीक है? इन केस ऑफ डिफरेंसेस. अच्छा, एक आपको एक, चूंकि आप लोगों ने उतना शायद एमसीक्यू वगैरह में आपकी
फेमिलियरिटी ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि जैसे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपके सामने एमसीक्यू आए तो उसको अटेम्प्ट करते समय ये नहीं कि सबसे पहला ऑप्शन आपको सही या गलत लगा और आपने उसके बेसिस पे आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, आपको हमेशा सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में हमेशा ये बात बोली जाती है कि बेस्ट अमंग द पॉसिबल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद जो आपके सामने ऑप्शंस हैं उसमें आपको पूरी तरह से सही कोई नहीं लग रहा है, पूरी तरह से गलत कोई नहीं लग रहा है, ऐसा भी होगा। ठीक है, दो ऑप्शन है जो दोनों ही पूरी तरह से गलत नहीं है, बट अगेन इन एमसीक्यू यू आर ऑलवेज सपोज टू पिक बेस्ट अमंग द पॉसिबल। ठीक है, जो भी आपको सबसे ज्यादा क्लोज लग रहा है सही आंसर होने के, करेक्ट आंसर होने के, यू विल बी मार्किंग दैट ऑप्शन ओनली। One more thing, whenever like in the class, as I'm told ki we are following this format of MCQ discussion largely, so you should always have one paper and pen with you, and whenever a question is shows, and of course the faculty, the teacher will take some time before he or she tell you the exact answer, correct answer, you should mark on your own. ठीक है, अगर आपके पास OMR शीट हो तो वेल एंड गुड, बट इफ यू डू नॉट हैव दैट तो एटलीस्ट हैव अ पेन एंड पेपर विद यू एंड यू ऑलवेज मार्क द आंसर। ऐसा नहीं कि सर ने मतलब दिखा रहे हैं बोर्ड पे और उसको आप देख रहे हो नहीं बी है कि सी है, नहीं बी भी सही लग रहा है, सी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, कोई मेरा आंसर सी है, नहीं नहीं अब मेरा आंसर डी है, तो वो फिर सर ने बताया कि सी आंसर, तो हाँ मैं पहले वही बता रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो भी आंसर है आप पढ़ो, उसके बाद उसको मार्क करो, लिखो, because eventually you have to take a call in an exam. You cannot just of course there will be confusion, so you have to basically deal with that confusion and you have to come up with the final one option out of the 4 available. ठीक है, so now tell me first what is the answer for this particular. Question is saying again, see, best reflect this. All the options might be a reflection of this, the proposition, but which one is the best reflection or the closest, closely associated with that? Few responses are there. सभी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखो सिर्फ एक सिद्धांत प्रसाद है ये रिप्लाई कर रहे हैं, हर्षित गोयल हैं, बट काफ़ी लोग हैं जो चुपचाप बस सुन रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट गुड, बिकॉज आप बोलो तो सही, आप बताओगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। पूर्वा, सिर्फ प्रेजेंट करने के बाद, गुड आफ्टरनून करने के बाद आप कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपका, ऐसा क्यों है? ईशानवी जौहरी, है ना, सिर्फ गुड आफ्टरनून नहीं करना है क्लास में, और भी रिस्पॉन्स भी देने हैं। अन्वेषा भूषण, कश्वी उपनेजा, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मयंक सोनी, आलीश कुशवाहा, है ना, रिस्पॉन्ड करो भाई, जो सवाल पूछा जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट ये बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, इसका जवाब क्या होगा, बट कुछ तो बोलो। यू कैन से कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एंड आई विल नॉट जज यू, इनफैक्ट इफ यू कैन फर्दर हाईलाइट, पिन पॉइंट द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइक क्वेश्चन कि ये चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, आई विल emphasize upon it, but at least you should answer. Yes, Aditya, you are replying, but not all. Like not all responses are visible to me. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका the correct answer is B. Many of you guessed it right. ठीक है, many of you marked it right. तो अब अगर देखें इसमें जो पहला जो स्टेटमेंट है कि ना डेमोक्रेसी विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, ठीक है, तो ये एक तरीके से एक फीचर है डेमोक्रेसी का कि विल ऑफ द पीपल ना सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे टॉप, सुप्रीम। अब अगर हम इसको देखें इसके रिस्पॉन्स स्टेटमेंट्स को कि प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो एक मैकेनिज्म है,
ठीक है, कि एक प्रेसिडेंट होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, बट दे आर डेमोक्रेसी लाइक यूएस, देर आर नो प्राइम मिनिस्टर इन यूएसए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर विल ऑफ द पीपल सुप्रीम नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन यूएसए में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है an assembly of the elected representative exercise political authority on behalf of the people। तो ये हो गया ना कि पॉलिटिकल अथॉरिटी, इवेंचुअली पॉलिटिकल अथॉरिटी कहाँ लाई करती है? असेंबली ऑफ इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दीज पीपल रिप्रेजेंट दीज जनरल पीपल। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, so they exercise the political authority because they are the one who basically who, if they want, can even remove the prime minister or the president or anyone। ठीक है, so definitely ये काफी क्लोज है उसके। तीसरा देख लें कि इन केस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू हाउसेस, तो अगेन ये स्टेटमेंट ना राइट है, रॉन्ग नहीं है, राइट है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर होता है कि जो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही आप यहाँ पर लिख रहे हो। तो ये आपने ना रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये करेक्ट भी नहीं है। ठीक, द लास्ट थिंग इज कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर देन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव से आप क्या समझते हो? हु इज पार्ट ऑफ दिस परमानेंट एग्जीक्यूटिव? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स तो आई एम श्योर आप समझते होंगे। क्विकली टेल मी एनीवन, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स मींस व्हाट? एनीवन? पूर्वा, सिद्धांत, अर्जित पटेल, आदित्य, एनीवन टेल मी permanent executives and political executives? सी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स तो आपने सुने ही होंगे, अभी मैंने जो बताया था कि 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। ठीक है, परमानेंट। ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स तो आपके हो गए मिनिस्टर्स या द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने सुना होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो हो गए। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में होती है आपकी ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जिसमें आपके ये सारे आईएएस अगेन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर bureaucratic services which are there in India, but apart from this there are also IPS, IRS, IFS, all these bureaucrats, civil servant you can say। ठीक है, civil servants, जिनको भी civil servants बोला जाता है, they are the part of permanent executives। याद कैसे कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हो गए। परमानेंट क्योंकि ये हमेशा एक लंबे समय तक वहां रहते हैं। ठीक है, सरकारें आती जाती हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, उसी के साथ मंत्री आते जाते हैं। मंत्री कई बार सरकार के गिरने से पहले भी रीशफल ऑफ द कैबिनेट, यू माइट हैव हर्ड। ठीक है, तो इन दैट रीशफलिंग पीपल, न्यू फेसेस कम इन द कैबिनेट, ओल्ड फेसेस somehow sometimes they don't retain their portfolio, so they go out of the council of minister। ठीक है, तो ये तो मंत्री हैं, मतलब साल 2 साल, मैक्सिमम 5 साल रहेंगे, उसके बाद वो बदल जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो आपके जैसे आईएएस, आईपीएस, ये हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये तो लगभग 30, 35, 40 साल के लिए एक सिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, which of the following issues has been most successfully addressed by the Indian democracy? बताइए। सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, नेचुरल इनइक्वालिटी। और अच्छा, ये जो मैं आज एमसीक्यू दिखा रहा हूँ, 2-4 एमसीक्यू तो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वहां से लिए गए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके एनटीएससी और स्टेट और नेशनल लेवल पे जो एनटीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वहां से पिक किए गए हैं। ठीक है,
ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इशू हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुली एड्रेस्ड? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आई होप द आंसर few of you have guessed it right. Political inequality is the answer. So अब जैसे क्यों पॉलिटिकल इनक्वालिटी है और क्यों बाकी नहीं है? बिकॉज पॉलिटिकली ऑल ऑफ अस आर मेड इक्वल बाय गिविंग टू ऑल ऑफ अस राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज राइट्स आर अवेलेबल. बेसिकली जो भी हमने इससे पहले देखा था, टू पार्टिसिपेट इन दैट इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, दैट इज अवेलेबल टू चूज एंड टू बी चूजन. ठीक है, ये दोनों ही राइट्स और अपॉर्चुनिटीज हम सभी के पास हैं. वी कैन एक्चुअली डू, वी कैन एक्सरसाइज देम. ठीक है, so that's why politically we all are very much equal, because ultimately election is a gateway to politics. Because until unless you are you have that ability to participate in the election, until unless you are not allowed to participate in the election, or you basically in election you participate in two ways. One as a like a voter or as a candidate. ठीक है, तो अगर आपके पास इन दोनों में से चॉइसेस नहीं है तो फिर आपकी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है. बट इन अवर कंट्री, एज पर द रूल्स, एज पर द लॉ, एनी वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल हैव अ राइट टू वोट, एंड वी ऑल कैन contest elections as a candidate. But when it comes to social inequality, see, socially we know still we have in our society the general category, then the backward caste, scheduled tribe, scheduled caste. Now these castes are why certain people are kept in these categories, and why there are certain positive affirmative actions are be conducted. ठीक है, मतलब एक तरीके से आप उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प स्टेट उनको करता है, या दे आर सर्टेन फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल टू देम विच आर नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक. व्हाई? बिकॉज again on the basis of analysis, facts and observation, it has been concluded that they are not at par with the rest of the general society, and that's why they need that extra support so that they can become and they can become and they can reach to that level where they can compete with the rest of the society, where they can become similar to rest of the society. ठीक है, so social inequality still exists. The like on what basis you can say existence of reservation system, you can say that is there. It means ki social inequality is there. Economic inequality is so definitely there. The kind of unemployment, the kind of poverty which is there in our country, the kind of unemployment, poverty, lack of per capita, if we look at the per capita income and the distribution of, अब जैसे हमारी जो जीडीपी आप सुनते रहते हो कि भाई जीडीपी इस रेट से ग्रो कर रही है. ठीक है, न्यूज़ में कभी आपने देखा होगा इस तरह की हेडलाइंस. तो हर किसी की लाइफ में जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं वो उस रेट से ग्रो नहीं कर रहे होते हैं. कुछ लोग होते हैं वो एक साल में और ज़्यादा जहाँ पर थे उससे और ज़्यादा प्रॉस्परस इकोनॉमिकली हो जाते हैं. बट दैट्स नॉट द केस विद मेजॉरिटी ऑफ अस, राइट? एंड दैट्स वाई देयर इज नॉट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा है. नेचुरल इनइक्वालिटी तो हो गया कि भाई नेचर ही कुछ, जैसे जेंडर के बेस पे, नॉट ऑल ऑफ शेयर द सेम जेंडर, not all of have the same physical characteristics. So these are the natural inequalities. ठीक है, next question. Am I too slow or am I explaining it a lot? You can give me a feedback and I can make it more short, the explanation or the way I'm touching upon the various aspect of a question. If you feel that I am, again, I do not know as such to what extent you guys are comfortable with the content and to what extent you are prepared. And if you feel that I'm taking too much time with an MCQ, you can tell me in your feedback, and then I can be a bit quicker. Or if you, I don't feel that I am going too fast in this class. So, ठीक है. Just look at this question, next question. It says that democracy is considered to be better than the other forms of government. Which of the following statements support this claim?
democracy is considered to be the better than the other forms of government, ठीक है ना? Which of the following statements support this claim? It is more accountable form of government. So why do we say that democracy is good or is better than the other alternatives? It improves the quality of decision. अच्छा, मुझे को तो ये सही लग रहा है. It ensures rapid economic development of citizen. Rapid economic development, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही देख लो, क्या आपको लगता है कि इंडिया में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ शुरू के सालों में? अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ा हुआ तो देखा होगा कि व्हेन इंदिरा गांधी केम, उनका एक बहुत बड़ा नारा था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, ठीक है? तो गरीबी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू था इवन अंटिल 1970s, मिड 70s. तो दैट शोज कि हमको आज़ाद हुए 1970s तक ऑलमोस्ट 20-25 साल हो चुके थे और तब तक गरीबी हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा था. और आज भी हमारे देश में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज सर्टेनली बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो हाउ कैन वी से कि इट, तो देखिए जब भी आपके सामने एमसीक्यूज हो ना और आपके सामने एमसीक्यू में कोई स्टेटमेंट दिया हो तो हमेशा उसको एग्जाम्पल से आप, जैसे इस स्टेटमेंट को आप सीधे राइट और रॉन्ग नहीं आप शायद सोच पा रहे हो, तो ऑलवेज थिंक ऑफ द एग्जाम्पल्स. एंड इवन इफ यू फाइंड अ सिंगल एग्जाम्पल विच कैन काउंटर दैट स्टेटमेंट, दैट इज सफिशिएंट इनफ टू अगेन काउंटर द स्टेटमेंट एंड टू मार्क इट रॉन्ग. ठीक है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया. इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन. व्हाट डू यू से अबाउट दिस लास्ट स्टेटमेंट? अभी तक आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया. ABD. People are saying ABD. Priyanshi says ABD. Siddhant भी ABD. All of Purva भी ABD. ठीक है, fine. So ABD. Why? Because how can we say कि it enhances the dignity? Because it gives you certain rights. ठीक है, right to life. There are so many rights which are given. Dignified life means what? Dignified life means there should be a standard of living in which there is a recognition of certain rights, that if you are a citizen of this country, if you are a human being human, you have certain like right for education, right to life with dignity in Article 21. ठीक है, when it is said कि there is a right to life, Supreme Court over the time has said, elaborated it, ki right to life with dignity, and that right to life include so many aspect of life, like ki, right to have clean water, right to have nutritious food, all those in various judgments Supreme Court has talked about. So it enhances the dignity because there are certain fundamental rights. ठीक है, तो ये भी statement सही हो गया, तो answer will be the first part, ABD. Okay, let's move on to the next question. So there are certain individuals, there are certain quotes, and you have to match these individuals with these quotes, and on the basis of that you have to pick which is the right match. ठीक है, तो अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru. So these has been the major political figure in the recent history, recent centuries, and that's why we should remember their quotes, what they have talked about, and their quote signifies or symbolize their political view or their view about the society or the government, and that's why it is always a good idea. And see, again, why I personally find it very difficult to remember the quote. ठीक है, बट अब यहाँ पे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपको इस कोट का भी एक जगह कहीं लिख लेनी चाहिए सारी कोट्स कि भाई ही सेड दिस, और एटलीस्ट अगर आपको कोई कोट बेस्ड क्वेश्चन दिखे तो वहाँ से वो, क्योंकि यहाँ पर अनटिल लेस आपको रोट मेमोराइज आपने नहीं किया हुआ है, एकदम रट
को आपको चीज़ें रटी हुई नहीं हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेप्चुअली फिगर इट आउट कि हु माइट हैव सेड व्हाट। ठीक है, अब जैसे अब्राहम लिंकन की ये जो कोट है ये तो बहुत ही फेमस है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय, एंड आई शोड यू इन अर्लियर ऑल्सो, एंड इट इज़ वेरी फेमस। ठीक है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको ऐसी कोई दिक्कत होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अनटिल यू हैव रियली, अब जैसे ये है कि आई शैल वर्क फॉर एन इंडियन इन विच आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया होना चाहिए, आई थिंक, एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी, देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ इसको देख के और यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल फिगर्स को देखें तो हमें ऐसा लग सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर माइट हैव सेड अबाउट इट बिकॉज ही केम फ्रॉम अ कम्युनिटी और फ्रॉम अ कास्ट विच हैड बीन टिल दैट टाइम एन अ विक्टिम ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, so a victim of this practices of untouchability, so it may common sense में किसी को लग सकता है, but actually it was said by Mahatma Gandhi in 1930s, early 1930s, when he was basically, when he took this and there was a very vibrant debate between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar about the abolition of caste, and so Mahatma Gandhi on his own, he initiated a movement to counter this menace of untouchability and this menace of basically these negative side effect of caste system. So Mahatma Gandhi was not in favor of abolition of caste system. He said कि caste system as such is serves certain purposes, but there are certain negative outcome of this system. So he wanted to get rid of those negative outcomes. But Ambedkar was of the view, he said कि no, there should be annihilation of caste, total casteless society. There should not be caste at all, and caste does not serve any purpose in the modern society, and that's why he wanted to abolish that caste system. So there were differences about on a particular topic among both great personalities. So इसका है आंसर ये. Then B.R. Ambedkar basically he got his education in USA. Nehru was like, if you will read the books about both of them, you will come to realize that Nehru was influenced by European ideas of because he had an exposure, relatively more he had more exposure to this European philosopher, European lifestyle. He was in touch of the Britishers. ठीक है, he spent a lot of time in London, in England, but B.R. Ambedkar spent relatively more amount of time in USA. अब USA तो वो चीज़ इनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में भी दिखती है. Ambedkar was more towards कि there should be growth, there should be economy, there should be prosperity, and Nehru was both towards he was more towards equality, the socialism. ठीक है, कि there should be the equal availability of resources for the masses. ठीक है, तो he was more kind of a socialist, and he was more kind of I can say not exactly capitalist, but yes, towards more growth oriented economy. ठीक है, rather than the equal distribution of resources wala idea. So here if you read these quotes, so this, how long shall continue to deny the equality in our social and economic life. Social में तो कास्ट वाला एंगल हो गया और इकोनॉमिक में इनकम, प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, if we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. कि अगर आपने सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस नहीं किया तो ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, ये भी बहुत फंक्शनल नहीं बचेगी. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. इट वॉज सेड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर. इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, एंडिंग ऑफ poverty, ignorance and disease and inequality of opportunity. It was said by Jawaharlal Nehru.
uh, Siddhant said that Pune Pact was signed to overcome that caste issue. Not exactly overcome that caste issue. Pune Pact was signed between Ambedkar and Gandhi to reach to a middle point, so that otherwise, like Britishers offered separate electorate. I'm not sure if you have read about or if you know about separate electorate. So basically, separate electorate, they in the 1919 and 1920 they offered it for Muslims, and then eventually in 1930s they said, after few round table conferences, they said कि we will offer separate electorate to Dalits, to the backward caste. एंड गांधी जी बिकेम फ्यूरियस, लाइक कि अगर आपने ये किया तो फिर हमारी जो एक सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी है, उसमें आप मतलब ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट कर दोगे, ऐसे सेग्रीगेट कर दोगे, लाइक इट विल लूज इट्स ओन एग्जिस्टेंस. एंड Ambedkar was to some extent, he said, okay, fine, let's take that separate electorate. He was fine with that idea. But Gandhiji went on for fasting, and he said ki this separate electorate to Dalit is something which will destroy this society. This will in a way create segregation of at such a scale that both aspect of both communities within this Hindu society will not be reconciled over the time. And that's why Pune Pact was signed, जिसमें कि गांधी जी ने कहा कि like I will take this as my life goal or objective to get rid of this untouchability and to bring the Dalit people and the Harijan people, as he used to call them, in the part of mainstream society. And Ambedkar also agreed to Gandhiji's demand that he will not agree with Britishers for separate electorate for the Dalit. So that was all about Pune Pact. ठीक है? Okay. चलिए, तो ये हो गया. Let's move on. So now this we start. Okay. We have yet to start the second chapter, but yeah, first chapter, what is democracy, complete हो गया. And then why democracy? So there are certain thing कि what, why democracy, ठीक है. So there are certain negatives of democracy. You should know about these things also. ठीक है. What are those negative things? कि leader keeps changing in a democracy. हम देखते हैं कि इतने बार इलेक्शन होते रहते हैं, और हर इलेक्शन में कई बार स्टेबल गवर्नमेंट आती है, कई बार मतलब स्टेबल मेजोरिटी होती है, कई बार अनस्टेबल मेजोरिटी भी होती है. So this perpetuate instability in a way. And democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. We have seen a lot of time, ठीक है, जहाँ पर एक वोट से सरकार गिर गई, 13 दिन की सरकार गिर रही है, ठीक है. तो all that shows what कि in a way you मतलब you do not consider it कि भाई ठीक है, जिसको भी गवर्नमेंट बन गई है, because electoral competition in itself is a very costly exercise. ठीक है. तो morality is a thing which is usually not considered. And again, the way democracy function in our country nowadays, morality has no scope in it. ठीक. So apart from this, so many people have to be consulted in a democracy that leads to delay, because in such a huge country, and there can always be with such a large scale diversity differences, तो ये भी एक negative है. Then elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. We have seen recently this farm law. आपने शायद देखा होगा कि government brought a law. Basically, that was a decision to implement this kind of new rules in the fields of agriculture. But over the time, government had to realize कि no, people are not in support of it, and that's why they took it back. So in a way, you can call it a bad decision, because eventually you have to make people ready for certain changes if you want to bring in those changes. Even if people are like adamant and they are not being ready, so at least discuss that thing, that discussion, that consultation, that should be visible rather than imposition directly. ठीक है. Democracy leads to corruption for it. It is based on electoral competition. तो जहाँ पर competition है वहाँ corruption के भी scope होता है. Then ordinary people do not know what is good for them, and they should not decide anything.
ठीक है. तो ordinary people, again, until as they are informed, until as they are educated, how will they come to realize ki what is good for them, and that information and education is very much necessary. I hope you are getting all these negatives of democracy, and if you have any doubt you can ask me, otherwise let's move ahead. So positives of democracy, there are certain positives. I'm sure like all these content are from your book only, so I have kept it here just for you to quickly revise the things. So more accountable form of government. Accountability is definitely there, because if government does not respond to your questions, eventually that government can be replaced by an election. ठीक है. Improves the quality of decision making, because again it's a consensus based decision making. Provides a method to deal with differences and conflict. Method to deal with differences and conflict. ठीक है. If there are certain differences, you can go to in parliament also, like parliamentary committees are there. On a particular issue, there are differences between the ruling party or the ruling dispensation, ruling ministers, and between the opposition party, so they can all go together and in that particular parliamentary committees they can discuss about the issues. ठीक है. जैसे अभी प्रवेशी this bill is being considered for the data privacy in the parliament. Now the government has brought that bill, but the opposition side people are saying that there are certain provisions in this bill which are not good and which may result into misuse of those provisions. So now, so there are certain differences. So what is being done? Government has given that to a parliamentary committee, and parliamentary committee is basically parliamentary committee discussed in that committee, in which there were members from the opposition parties also, and over the time they came up with a report and they submitted their report last month. So this is how the differences and conflicts can be resolved in a democratic setup. No one is a permanent winner and no one is a permanent loser. हर किसी का time आता है. ठीक है. The strongest argument for democracy is not about what democracy does to government, it is about what democracy does to the citizen. It empowers people. ठीक है. And that's in a way is more important. Democracy enhances the dignity of citizen. ठीक है. ये एक बार आप पढ़ लेना. I'm not going into all this because I feel that I have covered it already. But आप उसको खुद से पढ़ लीजिएगा. And if you have any doubt, you can ask me in the next class. ठीक है. So with this, I will conclude this first chapter with these two quotes. ठीक है. एक अब्राहम लिंकन की कोट है and एक विंस्टन चर्चिल की कोट है. अगेन ये भी आपसे पूछी जा सकती है ना. तो ये कोट मुझे कहीं से मतलब जो भी सही लगी तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल दी अदर्स. मतलब कि it is no doubt, मतलब there are certain negatives associated with here also. When we saw the negatives about the democracy, तो वहाँ पर negatives ज़्यादा थे, positives उतने ज़्यादा नहीं थे. तो democracy among all the alternatives which are available, among all the options which are available there, is better than the alternatives. It can be the worst, but even then it is better than the other alternatives which are out there. ठीक है. तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा. Now let's move on to the next chapter, which is about the constitution. ठीक है. तो what is, तो इस chapter की outline ये कि first they talk about like what is constitution, that we have already done in certain question. Why do we need a constitution? Making of the Indian constitution, the path, the history, the experience, and the guided value of the Indian constitution, the philosophy and the institutional design. So I will provide you certain questions related to these. ठीक है. अगेन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिखी हुई है, आप इसे खुद से पढ़ सकते हो. इवन दो I have discussed in certain question, and I will in further more MCQs are there, and I will further elaborate upon all these things. But ये यहाँ पर मैंने आपके benefit मतलब I hope that you will find it handy to revise from this particular document. Then why do we need a constitution? Because again ये भी आप रख सकते हो कि कुछ ऐसा MCQ भी बन सकता है कि constitution why do we need it. ठीक है. तो these are 1 2 3 4 requirements basically, or these 4 are the basis through which we gain something out of a constitution. ठीक है. All countries that have a constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. ठीक है. ये quote
आपकी बुक में भी लिखी हुई है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट, जैसे ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, ये वाला जो हाफ है स्टेटमेंट का वो तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर सर्टेन कंट्रीज, अब जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, जैसे अदर कंट्रीज भी हैं, सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो लाइक those countries are not democratic even though they claim themselves to be democratic. China for example, again I'll say, ठीक है, they are, that is not a democratic country, but all countries that are democratic will have a constitution. अब यहाँ पर ना सबसे prominent example आता है यूके का, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम. Now it is said कि in United Kingdom they do not have a written constitution, so they say कि United Kingdom has a unwritten constitution. So that's also not true, because यूनाइटेड नेशन की स्टोरी क्या है कि यूनाइटेड नेशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था कुछ 1265 आई थिंक, या 1200, वहाँ पर एक किंग जॉन करके किंग हुआ करते थे, ठीक है, एंड ही वॉज सच अ बैड किंग, ही वॉज लाइक, मतलब ही वॉज, मतलब ही यूज्ड टू एक्सरसाइज हिज पावर ऑन हिज ओन विल, ठीक है, जो मन में आया वो कर रहे हैं. तो ओवर द टाइम वहाँ के जो, अगेन एक तो होता है कि किंग, बट किंग के अलावा नोबल्स होते हैं, दे आर अदर एरिस्टोक्रेसीज आर ऑल्सो देयर, सो दे केम टू अ कंसेंसस दैट वी शुड हैव सर्टेन रूल्स विच, ठीक है, विच शुड बी अप्लाइड ऑन एवरीवन, इवन ऑन द किंग, ठीक है, सो इट शुड नॉट बी द केस द किंग इज बियॉन्ड all the rules and regulation, beyond any power. And they came up with this Magna Carta, a document which, so this idea ki the king can also be bounded by certain rules that came, and eventually that is the whole idea behind constitution. The people who are ruling, they should have certain rules to be rules to limit their powers, ठीक है. तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन करके तो कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, बट दे हैव plenty of, so this Magna Carta was one such document which in spirit gave like the spirit behind the idea of constitutionalism, or the constitution, with the same spirit this document was created, even though वो constitution करके उन्होंने उसमें नहीं बोला था. And since then in United Kingdom and over the time कई सारे laws आए, और उन laws का purpose ही ये था कि पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन करना और टू मच कंसंट्रेशन ऑफ पावर को खत्म करना, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना, पार्लियामेंट को लेके आना जिसमें कि वही नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. तो इस तरह के जो प्रिंसिपल्स थे उनको प्रमोट करना, एंड इन अ वे डेमोक्रेसी, तो दैट्स अ डेमोक्रेसी. यूके, they do not have a constitution as such, but they have rules and regulation, the conventions which are very sacred in nature, they do follow those conventions, and that's why even though they do not have a unwritten, they do not have a written constitution, but they do follow the constitutionalism, ठीक है. So the constitutionalism, the idea can be followed without even having a written documented constitution. So this is what I wanted to explain. If you have again any doubts, you can ask me. Sir, can you give an example of a country which has a constitution yet not a democracy? चाइना का इतनी बार तो मैंने बताया आपको, जैसे चाइना में they claim that they are a democracy, but not everyone has a right to contest election. And the जो एक प्रिंसिपल था ना कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू, दैट प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट फॉलोड. दे आर सर्टेन लाइक, जैसे उनकी, आई थिंक इन योर बुक इटसेल्फ इट इज एक्सप्लेन्ड इन एलैबोरेटिव मैनर की, लाइक इन देयर दे हैव दिस नेशनल पार्लियामेंट कांग्रेस, ठीक है, एनपीसी उनकी है, उसमें द आर्मी ऑल्सो nominate people, nominate member, and those member of NPC eventually elect the president. So in a way, army also has a say in the election of president in their country. ठीक है, तो ये तो काफी अनडेमोक्रेटिक हो गया कि आर्मी को आपने इतना वेटेज क्यों दे रखा है. इट शुड बी द पीपल, ठीक है, नॉट एन इंस्टीट्यूशन लाइक आर्मी.
चलिए, so making of constitution, all this factual information, constitution was adopted, ठीक है, on 26th November 1949, but it came into force on 26 January 1950. तो ये रखिएगा, Constituent Assembly, it was again elected in 1946, July 1946, but the first session happened in December, on 9th December 1946, and in the second or third meeting on 13th December, that the objective resolution, which essentially led to the preamble, which is basically the source of preamble, I will say, मतलब हमारा जो preamble है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाम से क्या लग रहा है, एक ऐसा रिजोल्यूशन, मतलब एक प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बेसिकली बातें कही गई थी कि हम किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. सो रिजोल्यूशन, और सिंपल भाषा में बोलें तो प्रपोजल was brought by our Pandit Nehru in the Constituent Assembly on 30th or 13th. ये मैं इसलिए बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन अ क्वेश्चन जिसमें बोला गया, मतलब एनटीएस में था क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड ऑन व्हाट डेट और वाज अडॉप्टेड ऑन व्हाट डेट, ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको एम्फोसाइज कर रहा हूँ डेट्स के ऊपर. फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, ये आप पढ़ लेना, सब आपकी बुक से है, सिर्फ मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. नाउ दिस इज द ओरिजिनल प्रियम्बल एंड दिस इज द एग्जिस्टिंग प्रियम्बल. यहाँ पर वो सारी डेट भी, यहाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने डेट यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 13th. The resolution was adopted on January 22. I don't know what is their obsession with dates, but they asked कि on which particular date the resolution was adopted, and that happened on 22nd January 1947. चलिए, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आई होप दिस इज बेटर विजिबल इन नेक्स्ट स्लाइड. यस, कि यहाँ पर एक तो ये 3S, सॉरी 2S, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, इट वॉज नॉट अर्लियर, एंड दिस इंटेग्रिटी, ठीक है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो सॉवरेन के बाद सीधे डेमोक्रेटिक आ गया, ठीक है. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है. डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन. So all these were brought in 1977 by Indira Gandhi government. ठीक है, ये द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, एक्सप्लेन किया है कि सॉवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर. आई होप आपको क्लियर होगा. रिपब्लिक को मैंने कहीं शुरुआत में बताया था, तो रिपब्लिक जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, वो शायद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है. So that's it. So here we are with Indian Constitution, lay down a procedure for choosing person to govern the country. It defines who will have how much power to take which decision, and it put limits to what the government can do by providing some rights to citizen that cannot be violated. ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं है. चलिए फिर से हम MCQs पे आ जाते हैं. And again, as I said earlier, most of these MCQs are part of this previous year question bank. So India is a republic because, why? This act provided for a republic, the head of the state is elected, the legislature is elected, or it has representative democracy. Republic means head of the state is elected. UK is not a republic. UK is a democracy but not a republic. Why? Because in USA, the head of the state is monarch. Sorry, USA कह रहा हूँ, UK. In UK, the head of the state is monarch, the king or queen, जो भी हो, ठीक है. अपने अगर आसपास देखें तो भूटान is a democracy, but Bhutan is not a republic because they have a parliament in which people are elected, ठीक है, and they have this representative democracy, but the head of the state is the king. ठीक है, तो दिस इज अ मोनार्क डेमोक्रेसी.
जहां रिपब्लिक डेमोक्रेसी नहीं है. इंडिया इज अ रिपब्लिक डेमोक्रेसी. सिद्धांत इज सेइंग सर, ठीक है. ईशानवी जोहरी ऑप्शन 3 द हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है. Okay, so now is this next question. Yeah, please. ठीक है. So this question says about match list. So list 1 में there are certain political systems, and in list 2 में there are nation, and you have to correct answer using the quotes given below. So now again just do the exercise. Federal, presidential, republic, federal, parliamentary, republic, unitary, parliamentary, monarchy, presidential cum parliamentary, republic. बताइए कौन सा यहाँ सिस्टम ठीक बैठ रहा है. इंडिया में हम क्या हैं क्या नहीं हैं, विच वन डू वी फॉलो. इंडिया का तो आई थिंक पता ही होगा. ठीक है. वी आर ए नॉट ए प्रेसिडेंशियल बट पार्लियामेंट्री, तो पार्लियामेंट्री है तो ये हो गया. हम यूनिटरी नहीं हैं, फेडरल हैं तो ये हो गया. रिपब्लिक तो हम हैं ही. ठीक है. सो समटाइम इट वर्क्स विद फिंगर, अदर टाइम्स इट नो. अब फिर ठीक है, यहाँ पर यूएसए का हमें पता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो फॉलो करते हैं. तो पार्लियामेंट्री ये तो हुआ नहीं, प्रेसिडेंशियल है, फेडरल है, रिपब्लिक है, तो ये यूएसए का हो गया. ठीक है. और उसके अलावा यूके का हम देख सकते हैं, मोनार्की यहाँ लिखा हुआ था ना कहीं कि यूनिटरी भी है, पार्लियामेंट्री भी है, मोनार्की है, तो ये यूके का हो गया. ठीक है. देन प्रेसिडेंशियल कम पार्लियामेंट्री एंड रिपब्लिक. ठीक है. तो प्रेसिडेंशियल कम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, सो दिस इज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ फॉर्मेट. ठीक. और ये आपका फ्रांस में पाया जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स. राइट टू फ्री एजुकेशन बताओ. राइट टू लाइफ, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो वो ऑल ऑफ दीम आर एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन इन विच पार्ट 3 of our constitution. So our constitution is divided in various part. ठीक है. तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं. तो इन पार्ट 3 देयर आर वेरियस आर्टिकल. तो आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, एंड राइट टू फ्री एजुकेशन है आपका आर्टिकल 21A. ठीक है. एक बार आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वो है ना कंटेन जो लिस्ट होती है, आप वो भी देखेंगे तो वहां से भी आपको एक पूरी आइडिया लग जाएगा कि कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट है. हाँ, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं वैसे इस स्लाइड में कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट, 12 से लेके 35 तक हैं आर्टिकल नंबर्स, एंड दिस इज गिवन इन एज आई सेड पार्ट 3. ठीक है. इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि इफ someone violates all these 5 मतलब कैटेगरी ऑफ राइट, एंड इन दीज कैटेगरी ऑफ राइट देयर आर एलैबोरेटेड अदर राइट्स. तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट है, जिसके थ्रू यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, you can go to high court under article 226, and you can seek the like you can seek the resumption of like you can say that our rights are being, fundamental rights are being violated, and we need your help, and you can then register your grievance, and you can seek redressal of your grievance there. ठीक है.
If you have any doubts, you can ask. अच्छा, राइट टू एजुकेशन में कई लोगों ने अच्छा ये आंसर भी किया है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। समझ में आता है, राइट टू फ्री एजुकेशन बोला गया है तो कल्चरल एजुकेशन राइट, कुछ लोगों ने ये भी रिप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं है, राइट टू लाइफ में आता है। और इसके लिए अगेन एज आई सेड कि आपको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप वो भी देख लेंगे ना एटलीस्ट लिस्ट कि कहाँ पर, एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपके सामने मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको ना, कि ये देखिए जैसे इसमें, आई होप इसमें दिया हो कि हाँ एटलीस्ट ये जो है, ये देख लीजिए इसमें जो ये इन्होंने देख रहे हैं ना, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, एटलीस्ट जस्ट लुक एट दिस लिस्ट ऑफ कंटेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो देयर आर दीज पार्ट्स, इन पार्ट वन दे टॉक अबाउट कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है, उससे पहले प्रियम्बल भी है, प्रियम्बल विच इज केप्ट आउटसाइड ऑफ एनी पार्ट। So there is this union and territory, there is this citizenship को लेकर, there is a part in which there are provisions related to citizenship. Then there is this part 3 in which there are these fundamental rights in general, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर है 14, 15, बट यहाँ पे आप देखो राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। देन देर इज दिस राइट टू फ्रीडम, अब इसमें आप देखो 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड 21A राइट टू एजुकेशन। तो अगर आप बस इतना भी देख लोगे ना, विदाउट इवन गोइंग टू मच इनटू द आर्टिकल की 21A में एज सच क्या लिखा है, वो मुझे नहीं लगता कि आपको उतना याद करने की देखने की जरूरत है, बट अगर आप बस ये लिस्ट भी देख लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग थिंग्स, इन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे पार्ट 4 है, इसमें DPSPs के बारे में, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारी DPSPs पूरी याद होनी चाहिए 1 by 1, बट एटलीस्ट ये कंटेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा किस बारे में बात हो रखी है, ठीक है। कोऑपरेटिव्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, हो सकता है पूछ ले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में है कि DPSP में है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A एक अलग से पार्ट ऐड किया था, पार्ट 4A, ठीक। So this is how you can have a look, and you can, it can help you make remember all the part, ठीक है, basic aspect of our constitution। चलिए ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following schedule of constitution of India contains provision regarding anti defection? I hope that you understand what anti defection is. Sir, can you please repeat the objectives of article 226? See, article 32 is given in part 3, which, so article 32 is your fundamental right, but article 226 is outside of part 3, so article 226 is not a fundamental right, but article 226 is a facility through which if your fundamental rights are violated, you can seek some help from courts, and in article 226 you can seek help from high court, ठीक है। आप हाई कोर्ट के पास जाके बोल सकते हैं कि सर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, और मेरे जो फंडामेंटल्स का वायलेशन है इसको आप बंद करवाइए, ठीक है। आप इस तरह से उनके पास जा सकते हैं। सो दैट इज आर्टिकल 226। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन। सो डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट एंटी डिफेक्शन इज? एंटी डिफेक्शन को याद रखने के लिए मतलब एंटी डिफेक्शन मतलब कि जब कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप लीव इसलिए करते हैं बिकॉज अगेन फॉर सम पॉलिटिकल गेन्स, ठीक है,
एक टेंडेंसी हुआ करती थी जिसको मतलब पॉलिटिकल स्पेस में बोलते थे आया राम गया राम, मतलब कि जो मेंबर्स हैं एक बार इलेक्ट होने के बाद वो एमपी या एमएलए बन गए, उसके बाद जब उनको लगता था कि इस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी तो हमारे को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा सहूलियत मिलेंगी, तो वो उसका समर्थन करने लग जाते थे। फिर उनको वहाँ जब वो चीज़ नहीं मिल रही होती थी तो वो किसी और का समर्थन करने लग जाते थे। तो एक टाइम था 1960s का, 1970s का, 1980s तक ये चीज़ बहुत हुई कि एमपी एमएलए अपना जो समर्थन है वो तुरंत पार्टी बदल लेते थे, ठीक है। तो उसको नाम लोगों ने दिया था आयाराम गयाराम, बिकॉज देयर वाज अ पर्सन इन हरियाणा who switched his political party very frequently, and that's how this entire activity got named after him. But basically, so anti-defection. So this particular set of rules or laws prevent you from seeking defection, from doing defection basically. ठीक है? या 10 शेड्यूल, यस 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन रूल्स के बारे में बताया गया है। तो देयर वाज दिस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब व्हेन वी चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन वी कॉल इट एन अमेंडमेंट, ठीक है। दिस इज जस्ट अ फॉर्मल वे ऑफ सेइंग कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए, तो वी जस्ट डू नॉट कॉल इट कि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कॉल इट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, legal formal manner of saying it. So this 10th schedule, initially when constitution was made in 1950, तो वहाँ पर केवल 8 शेड्यूल थे, ठीक है ना। इनिशियली देयर वर ओनली 8, ओवर द टाइम 9th 10th और आज की डेट में हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। सो ऑल दीज 4 9 10th 11 12th वर एडेड ओवर द ईयर्स, ठीक है। So, Anti-Defection Law, 52nd Constitutional Amendment Act, and in 1985, 52nd Constitutional Amendment Act in the year 1985 was brought to, basically उसमें ये था कि अगर कोई डिफेक्शन करता हुआ पाया गया तो he will lose the membership of the house. इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, and these both of these questions are from your exam. So the 10th schedule was added by which amendment? So 52nd, ठीक है, in the year 1985. And this is about the schedules. The schedules which are there. What? तो यहाँ से लेके और यहाँ तक तो ये ओरिजिनली प्रेजेंट थे, लेकिन ये जो 4 शेड्यूल हैं, ठीक है। शेड्यूल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में, पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, फिर मल्टीपल पार्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स में उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि सबसे आखिरी में जाके वो एक शेड्यूल में लिस्ट काइंड ऑफ एक एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन रहती है जिसका रेफरेंस कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में ही दिया होता है, ठीक है। तो ये जैसे फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने नेम ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ का नाम बताया हुआ है, सेकेंड में अलाउंस प्रिविलेजेस, कितनी सैलरी को एमोल्यूमेंट्स वगैरह बोल के बताया हुआ है कि जो कुछ डिग्नेटरीज हैं उनके क्या प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस होंगे। थर्ड में ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बताया गया कि जब वो ओथ लेंगे तो किस मैनर में लेंगे, ठीक है, क्या उनकी ओथ का क्या वर्डिंग्स होंगी, वो सारी इसमें बताया गया है। देन फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट इन राज्यसभा, ठीक है, स्टेट एंड यूटीज इन राज्यसभा। फिफ्थ में है कि आपके शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पर कि शेड्यूल ट्राइब डोमिनेट करती हैं, एक सिग्निफिकेंट नंबर में रहते हैं, नॉट डोमिनेट बट आई विल से सिग्निफिकेंट नंबर में रहते हैं, तो उनके ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सर्टेन के मतलब सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। इसलिए उससे पहले जरूरी है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, दैट्स दी वे। फिफ्थ शेड्यूल for fifth schedule of the constitution talk about the schedule areas in states, ठीक। then there are certain state Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, same चीज जो फिफ्थ शेड्यूल में certain areas के लिए की गई, उससे ही वही चीज ध्यान में रखते हुए ये जो 4 राज्य हैं उनके लिए सिक्स शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजंस हैं।
इफ यू लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पर आप देखेंगे कि ऑल दीज स्टेट्स आर वेरी क्लोज बाय, ठीक है। जैसे ये तो एक आसाम हो गया, आसाम इज अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट विच टच विच शेयर बेसिकली इट्स बाउंड्री विद ऑल द रेस्ट ऑफ द मेंबर इन दैट स्टेट, इन दैट रीजन, ठीक है। जैसे ये आसाम है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मेघालय है ये, ठीक है, यहाँ पर मेघालय है। आसाम के इधर आप देखेंगे तो त्रिपुरा है, ठीक है। आसाम के इधर देखेंगे तो मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर के ऊपर देखेंगे यहाँ नागालैंड है, और नागालैंड के ऊपर यहाँ देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये जो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो ये नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश की साइड में जो 4 स्टेट हैं उनके लिए 6 शेड्यूल है। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हाल पूछ लिया कि 6 शेड्यूल में कौन से स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। तो आपको मैप पता होना चाहिए। आसाम मेघालय, मेघालय मतलब चेरापूंजी से सुना होगा आपने, सबसे ज़्यादा बारिश कभी वहाँ पर हुआ करती थी, आजकल तो ड्रॉट के हालात भी वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। सो मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, देन मिजोरम। आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले आसाम और मिजोरम में पुलिस में ही आपस में लड़ाई हो गई थी, आसाम की पुलिस ने मिजोरम की पुलिस में आपस में लड़ाई हो गई थी, और उसकी में कई सारे पुलिस के लोग भी डेथ हुई। और इसके अलावा मणिपुर आपने सुना होगा, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड अभी न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसके ऊपर है अरुणाचल, अरुणाचल तो याद रहते ही होगा, आसान है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजो पीपल, ठीक है। मिजोरम से एक रिसेंटली ओलंपिक में मेडलिस्ट भी थी, ठीक है, उससे भी आप याद रख सकते हो नाम। कैन एनीवन टेल मी लाइक द नेम ऑफ दैट मेडलिस्ट? दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द, लाइक आई फील इन द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन एनटीएससी, दे कैन आस्क यू दैट आल्सो। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से कौन सी अभी ओलंपिक गेम्स मेडलिस्ट थी या था? और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में किन किन स्टेट से मेडलिस्ट थे, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन, रादर देयर वर फ्यू स्टेट्स जहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट थे इस बार के ओलंपिक गेम्स में। खैर, so you respond to this that question. Meanwhile, there is another MCQ. The time is over for today's class, and we are still left with a significant number of MCQs. So what we'll be doing, because there is another faculty will be ready for the next class, so I will finish rest of the MCQs in the next. बस एक इसको finish कर लेते हैं. Which of the following is the inspiring philosophy of the Constitution of India? ये तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से। अगर आपने फिलोसफी के लिए हम बोलते हैं कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन द प्रीएम्बल। रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा आप लोगों का। अव्यक्त शर्मा, प्रियांशी गैजेट राइट, मीराबाई चानू, शी इज फ्रॉम मिजोरम, ठीक है। So, which of the following is the inspiring philosophy of the Constitution of India? Secularism, equality, communism, democracy, republic, democratic republic, sovereignty, fraternity, secularism, equality, justice, equality, fraternity, communalism and secularism. तो ये तो देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हमने कहीं भी नहीं देखे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टिल नाउ। एंड इफ यू लुक एट दीज, सो यही हो गया 2 and 3rd. The answer will be C part. ठीक है? So with this, let me conclude today's session, today's class, and in next class we will finish the rest of the MCQs, and I will bring more MCQs so that I can cover the entire syllabus from the NTSC exam point of view, the kind of question that they ask in NTSC exam. We will be looking at most of the previous year question only, and that's all. If you want any changes, if you have any suggestions, you can tell us through like the people, like the channels which are there, and that's it. So wish you all the best, good luck, and we will meet day after tomorrow. Thank you.